Hello, this is KK Bhatt here from LPM Public School, Gola Bazaar. Dear students, today I am going to teach you the last part of class 10 English Footprint Without Feet, the second lesson, Thief's Story. In the previous two videos, I have explained the summary of this lesson as well as I have explained the passage through the videos, and I hope you will get a lot of benefit, and I also think that there is no problem with that particular video. If you have any problem, you can contact me through the WhatsApp group. Dear students, look here, page number 11. When I reached the station, when means I means Hari Singh. Hari Singh said that when he reached the station, I did not stop at the ticket office. He did not stop at the ticket window. When he reached the station, he did not stop at the ticket window. I had never bought a ticket in my life. He said that in his whole life, he had never bought a ticket because he was a thief, and thief never bought. I think the thief never bought a ticket, just he traveled without ticket, but dashed straight to the platform. Dash means ran straight to the platform, ran directly to the platform, यानी वो सीधे प्लेटफॉर्म पे दौड़ के जाता है. The Lucknow Express was just moving out. When he reached at the platform, he found that Lucknow Express was just moving out. The train had still in pickup speed. He saw that the train just picked up the speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. And as he saw that the train just moving in front of him, and he was capable to take the train, to catch the train, only to jump into one of the compartment. But I hesitated, but he felt some hesitation. There was some reason in backup. For some reason I can't explain, there was some reason in backup, and that reason he can't able to explain. And I lost the chance to get away. Get away means ran away. In this way, finally, Hari Singh lost his chance to run away to catch a train for Lucknow. So, yeah, some reason. What is the meaning of some reason? Some reason means, as I told you that in some time, bad man also change into good man because of situation, because of condition. So that is the reason he can't able to catch the train, because when you think about Anil, he found that Anil was really a very good person. He was very honest. He was good person. He was very honest person, and also very trustful person. Well, Anil just trusted him much. That is the thinking stopped him to catch the train. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. When the train had gone, he found himself standing alone on that empty platform. Empty platform means no one was there on the platform. No was there on the platform. I had no idea where to spend night. He had also no idea where he spent the night. I had no friend, believing that friends were more trouble than help. Very remarkable line. She said that he had no friend. If there were any friends, he do not like to go there because he thought that friend create more problem than help. यानी जो मित्र होते हैं वो आपकी सहायता करने के बजाय आपकी परेशानी को और बढ़ा देते हैं. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और वो नहीं चाहता था कोई इसके बारे में जाने. बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर स्टेशन. स्टेशन के पास में जो होटल थे छोटे छोटे, उन छोटे होटलों में रुक करके वो लोगों की क्यूरियासिटी को बढ़ाना नहीं चाहता.
The only person I knew really well was the man. The only person whom he knew, that was the man I had robbed. That was the man he had robbed. Who was that man? That man was Anil. Anil was the person whom he knew very well. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन को छोड़ते हुए वो सीधे बाजार की तरफ जाता है. इन माई शॉर्ट करियर एज ए थिप, अपने इस छोटे से करियर में चोर के रूप में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर फूड. उसने बहुत सारे लोगों के चेहरे को पढ़ा है जिन्होंने अपने पैसे खोए हैं, अपने सामान को खोए हैं. वो बताता है ग्रीडी मैन सोड फियर. ग्रीडी मैन क्या करता है? ग्रीडी मैन सोड फियर. जो ग्रीडी मैन होते हैं वो क्या शो करते हैं? फियर शो करते हैं, भय शो करते हैं. राइट. ग्रीडी मैन सोड फियर एंड रिच मैन सोड एंगर. जो ग्रीडी मैन होते हैं वो फियर को शो करते हैं. जो एंगर मैन होते हैं, जो रिच मैन होते हैं वो एंग्री शो करते हैं, ईगो अपना शो करते हैं. द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस. वेरी रिमार्केबल लाइन, वेरी रिमार्केबल ला. द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस. कहता है जो गरीब आदमी होता है यार वो बड़ा संतोषी होता है जब उसके अंदर वो संतोष का एक्सेप्ट, मतलब उस चीज़ को मान लेता है, इस रूप में मान लेता है कि शायद वो धन हमारा नहीं था, इसीलिए भगवान ने उसको चोरी करवा दिया. मतलब ही ब्लेम एवरीथिंग टू गॉड. वो सबके लिए भगवान को दोषी मानता है. कहते भी ईश्वर की इच्छा है, तभी तो जो पैसा मेरे पास आया वो मेरे पास नहीं रहा, उसको किसी ने चुरा ले गया. मतलब ये जो धन था उसका था, इसलिए वो लेके गया. इसलिए जो गरीब आदमी होता है वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है, मेंटली प्रिपेयर करके खुद को सेटिस्फाइड कर लेता है. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस. फिर वो कहता है कि ही न्यू वेल अबाउट अनिल. ही नो वेल अबाउट अनिल. अनिल को अच्छी तरह से वो जानता था. When he discovered the theft, when he knew that his money has been theft, would show only a touch of sadness. वो केवल थोड़ा सा दुख व्यक्त करेगा. Not for loss of money, इसलिए नहीं कि उसने पैसे खो दिए, but for the loss of trust. बल्कि जो दुख होगा उसको इसलिए नहीं होगा कि उसके पैसे चले गए, वो दुख इसलिए होगा कि मैंने उसका विश्वास तोड़ा है. तो मैंने बताया था कि आपको कि विष दे दो लेकिन विश्वासघात मत करो. विश्वासघात से बड़ा कोई अपराध दुनिया में नहीं होता है. जहर दे किसी को मार दो जान से, वो चलेगा, क्योंकि आदमी मर जाने के बाद आपको उसको मन में तकलीफ तो नहीं होगी. लेकिन अगर आप जीते जी उसके साथ विश्वासघात करते हो तो बहुत दर्द देता है, मौत से भी ज़्यादा खतरनाक दर्द देता है. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. He said that he just went toward the Maidan. There he sat on a bench. The night was chilly. The night is full of cold. It was early November. The time was early November, and a light drizzling added to my discomfort. आप कह सकते हो a group of light shower just increased his discomfort because he was suffering from cold. And when the rain started, he started to become wet. That is why the coldness increased much and much. It was soon it was raining quite heavily. इतना ही नहीं, उसके बाद जोर से बारिश होती है. My shirt and pajama stuck to my skin. His shirt and pajama both are being wet and stick on his skin. And a cold wind blew the rain across my face. और जो ब्ली विंड है, जो हवाएं हैं वो तेज़ी से बह रही हैं, और जो कोल्ड रेन है वो सीधे उसके चेहरे पे जाके टकरा रही है, जिसकी वजह से उसको ठंड और भी अधिक बढ़ती जा रही है. अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज. ये पेज नंबर 12, सी पेज नंबर 12. और देखो ये कह रहा है आई वेंट बैक टू बाज़ार. वो कहाँ जाता है? बाज़ार जाता है. आई वेंट बैक टू बाज़ार, पुनः वो बाज़ार की तरफ जाता है. एंड सेट डाउन इन ए शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. और क्लॉक टावर की छाया में वो बैठ जाता है. फॉर सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, खुद को बारिश से बचाने के लिए. द क्लॉक शोड मिडनाइट. व्हेन ही वॉच द क्लॉक ही फाउंड दैट द टाइम इज़ मिडनाइट. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. उसने नोट्स के लिए महसूस किया. देयर वर डैम फ्रॉम द रेन.
डैम मतलब वेट, गीला हो जाना। वो कहते हैं जब वो नोट को देखता है तो नोट उसके क्या हो गए हैं, गीले हो गए हैं। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। ये पैसे किसके? अनिल के पैसे हैं। शायद सुबह अनिल जब सो के उठता तो उसको 2-3 रुपये देता, वो कहता जाओ और सिनेमा देख लो। बट नाउ आई हैड इट ऑल, कहता है अब लेकिन अब तो मेरे पास सारे पैसे हैं। वो 2-3 रुपये दे के एहसान करता, अब तो उसके पास सारे पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, सबसे बड़ी बात है कि अब उसको खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रेंट टू बाज़ार, उसको बाज़ार सामान लेने नहीं जाना पड़ेगा। एंड अगला क्या कह रहा है वो, देखो ध्यान से, लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और उसको आगे सेंटेंस को लिखना और याद करना नहीं पड़ेगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थिंग, कह रहा था कि आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल चुका था चोरी के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंस लिखना। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज़, कह रहा कि मैं जानता हूँ कि लिखना पढ़ना अगर मैं सीख जाता हूँ तो लिख पढ़ करके एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ जो मेरे पास बहुत से रुपए ला सकते हैं इस कुछ हंड्रेड्स की अपेक्षा। इट वॉज़ ए सिंपल मैटर टू स्टोर, बहुत ही आसान काम है चोरी करना। बट समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी काट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग पुलिस के द्वारा पकड़े भी जाते हैं। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़े आदमी के लिए, लेकिन वास्तव में एक बड़े आदमी के लिए, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और सम्मानित आदमी के लिए वह समथिंग एल्स, उसके लिए कुछ और ही है। आई शुड गो बैक टू अनिल, कहता है कि मैं अनिल के पास वापस जाना चाहिए। कहता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को तैयार किया, मेंटली प्रिपेयर किया खुद को। आई ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कह रहा है कि मैं ही हूँ, मुझे रास्तों में लिखना और पढ़ना सीख लेना चाहिए। कह रहा आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग than to return it under undetected. I opened the door quietly, then stood in a doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up to with notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand around the edge of the mattress and slipped under it with the note. कहते हैं कि I hurried back to the room feeling very nervous, बहुत ही नर्वस महसूस करते हुए वापस वो उसके कमरे में जाता है। Feeling too nervous, he went to the back of the room. For it is much easier to steal something than to return. कहता है कि बहुत आसान काम है किसी चीज़ को चुराना, लेकिन किसी चीज़ को चुरा के उस स्थान पर रखना उससे भी ज़्यादा कठिन काम है। तो कह रहा है फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इज अनडिटेक्टेड। कहते हैं अनडिटेक्टेड, अननोटिस, बिना नोटिस किए हुए उस सामान को फिर से उस सुरक्षित स्थान पर रखना बहुत कठिन है। यानी कह रहा है कि चोरी करना आसान है, लेकिन फिर बिना पहचाने हुए, बिना पकड़े हुए उस पैसे को, उस सामान को वापस रखना उससे ज़्यादा कठिन है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, वो चुपचाप दरवाजे को खोलता है। आई क्रिप्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, वो उसके सांसों को अपने हाथ में महसूस करता है। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं कुछ भी क्षण रुकने वाला नहीं था। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब जो उसके हाथ हैं वो जो एज ऑफ मैट्रेस के किनारे पर जाते हैं। एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और धीरे से वो नोट को अपने हाथों से उस बेड के नीचे सरका के चला जाता है। कह रहे आई वोक द लास्ट नेक्स्ट इवनिंग टू फाइंड, कह रहे मैं उठा सुबह तो मैंने पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल जो पहले से ही चाय बना चुका है। तो देर and Anil had already made the tea. He stretched out his hand toward me.
उसने अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके फिंगर में एक 50 रुपये की नोट थी। माई हार्ट सैंक, उसका हृदय घबराहट से डूब गया, मतलब ही अंडरस्टैंड दैट इट मे बी आई वॉज कॉट। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है। अनिल को पता चल गया है कि मैंने उसकी नोट को चुराया। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन, आई मेड सम मनी स्टरडे, ही एक्सप्लेन। अनिल ने कहा, उसको बताया हरी सिंह को कि ही हैड अर्न सम मनी द प्रीवियस डे, मतलब पिछले दिन उसने कुछ पैसे कमाए हैं, ठीक है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब आपको ये पैसे रेगुलर मिलते रहेंगे अगर आप उसको दे देते हो तो। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस सेट, यानी अनिल ने कहा कि चलो आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखते हैं। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो सब कुछ जानता था लेकिन न तो उसके आँखों पे न उसके वेट पर कोई प्रभाव पड़ता है। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, न तो उसके आँखों न तो उसके वोट पे कोई प्रभाव पड़ता। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मतलब हरी सिंह जो है अनिल को देख करके बहुत ही गजब की स्माइल देता है। एंड द सिंपल एंड स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और ये जो स्माइल आ रही है वो स्वयं आ रही, कोई बनावटीपन उसमें नहीं है। विदाउट एनी, बिना किसी प्रयास के, वो जो मिठाई है वो स्वयं उसके पास आ रही, विदाउट एनी ग्रेट ट्रबल। ना हियर आर गिवन मीनिंग, फ्लैटरी, insincere praise, modesty without boasting or in a humble way, grunting, making low gruntal sound, appeals attractive, online, show no sign of worry or anxiety, show no sign of worry or anxiety. I hope it is clear. Now see here are some questions you can read here. Who does I refer it to in this story? That is the first question. Who does I refer to in for his story? What is B? What is he fairly success? Hand up. What does he get from Anil and return for his work? How does the thief think that Anil will react to the theft? What does he say about the different reaction of people when they are robbed? Does Anil realize that he had been robbed? So I think that Anil realized that he had been robbed because when he found the notes, that is what he realized, that maybe Anil had tried to stolen his note, but fortunately his mind changed and finally his mind changed and he put, ठीक है, he put the money once again into the power. So, does Anil realize that he has been robbed? Yes, Anil realized that he has been robbed because when he saw the notes, that is red, at moment he realized that this has been done by Hari Singh. ये सारी चीज़ें किसके द्वारा की गई? अनिल के द्वारा। तो इस तरह से एक थिंकिंग उसके अंदर जनरेट होती है और वो इस तरह की फीलिंग को क्रिएट करती है। Here are given some question. Riya had talked about, do you think people like Anil and Hari Singh are found only in the fiction or there was such in early life? ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिक्शन में पाए जाते हैं, अर्ली लाइफ में भी इनको स्थान मिलता है। Have you met anyone like Hari Singh? Can you think and imagine? क्या आपने ऐसे व्यक्ति से मिला है? ठीक है, तो डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन आर देयर वाज सच ए पीपल इन रियल लाइफ? आप लिख सकते हो नॉट ओनली रियल लाइफ में भी पाए जा सकते हैं। डू यू थिंक ए सिग्निफिकेंस डिटेल इन द स्टोरी? अनिल इज स्ट्रगल राइटर, जस्ट डिस्क्राइब द समरी इन डिटेल। हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टेंस दैट कैन टर्न ए डिफरेंस? ठीक है, year old boy into the thief. Where is the story set? You can get clues from the members of the person
names of the person and place mentioned in it. Which languages are spoken in this place? Do you think the discover in the story spoke to each other in English? He said with he said it with Arsenic by Ruskin Bond, Wonka by Anton Chekhov, and yes, A. Scandalous Formula by Arthur Cannon. I hope it is clear. Thanks to watch my video.